I'm dealing with this problem that is 298. यहां पर एक डिस्क दिया गया है जिसका मास है इक्वल टू 9m, जिसका रेडियस r है, उसका मास है 9m. तो what will be the mass जिसका रेडियस ऑफ द डिस्क है r/3? इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन. तो यहां पर the mass of the disk will be equal to density into volume of the disk. डेंसिटी कितना रहेगा? टोटल मास. टोटल मास का मतलब होगा 9m अपॉन वॉल्यूम which is equal to this. Density is equal to total mass upon volume of the larger and volume of the smaller. This will be 4/3 pi r/3 the whole cube. So this will get cancelled. वो भी cancel हो जाएगा. That will also get cancelled. 4 and 4 will get cancelled. तो यह आएगा equal to m. So just make a note here कि जिसका मास 9m है, रेडियस r है, और जिसका रेडियस है r/3, उसका मास आएगा इक्वल टू m. मुझे अभी क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जिसमें से ये निकाल दिया गया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग मुझे निकालना है. ये बड़े डिस्क में से ये निकाल दिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट मुझे निकालना है ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. तो मैं ऐसा लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट डिस्क, जिसका रेडियस है r, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, जिसका रेडियस है r/3, बट इट हैज टू बी अबाउट द पॉइंट. यहां पर भी दिस इज अबाउट पॉइंट O. मैं रिपीट कर रहा हूं. ये बड़े डिस्क में से आपने इसको निकाल दिया है जिसका रेडियस है r/3. तो रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क जिसका रेडियस r है अबाउट द पॉइंट O, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क जिसका रेडियस है r/3 अबाउट O. तो यहां पर आपको मिलेगा this moment of inertia of the disk is equal to mr²/2. लेकिन यहां पर मास कितना लेंगे आप? 9 है. मास m नहीं है, मास इज इक्वल टू 9. तो 9mr²/2 माइनस, अभी आप देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट डिस्क का निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, और ये पॉइंट उसका सेंटर है यहां पर O'. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट IO will be equal to, this is again mr²/2, and this will be minus. Now this IO will be equal to moment of inertia of this disk about O' plus mh², and what is this h equal to? H is equal to, what is that? It is 2r/3. रिपीट कर रहा हूं मैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट O. हो चुकी है बात. ध्यान में रखेंगे यहां पे 9m इज द मास, एंड दिस इज माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द पॉइंट O. अबाउट द पॉइंट O का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट O' plus mh², and h is equal to r/2, and so this I remaining will be equal to
how much? This is m 9 mr square by 2 और ये रहेगा minus what is this IO equal to? This will be mass half mass into radius square. This is the result plus ms square which is equal to m and h is equal to this the whole square. That's the result which is obtained. So well now, moment of inertia of the complete disk 9 mr square by 2 minus moment of inertia of this small disk about point O. It is not about point O dash. So this is equal to O dash plus mh square. ये O dash आपका रहेगा हाफ m r square. R कितना? R by 3 है यहां पर और डिस्टेंस कितना है? It is equal to 2r by 3 and the answer comes out to be equal to 4 mr square. You can calculate to get the result. In this problem 299, a rod PQ of length of mass m, length L is hinged at end P. The rod is kept horizontal by the massless string tied to Q as shown in the figure. When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod कितना रहेगा ये पूछा गया आपको. So well, it is very simple problem here. यहां देख लीजिए mass is acting in the vertically downward direction. So what is torque equal to? Torque will be equal to force multiplied by perpendicular distance. This is the torque, and torque is also equal to I into alpha. So this is mg into L by 2 is equal to I. I आपका रहेगा, it is the rod is rotated about one end. So we take moment of inertia of the rod about one end, and this is equal to m L square by 3 into alpha. So you can calculate this, and the result works out to be equal to alpha is equal to 3g upon 2L. आप देख लीजिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू आई इंटू अल्फा. आई हम लेते हैं रोटेशन ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड विच इज ml स्क्वायर बाय 3. A hoop of radius r, mass m is rotating with angular velocity omega is placed on the rough horizontal surface. The initial velocity is equal to 0. What will be the velocity of the center of the hoop when it ceases to slip? अभी इसका मिनिमम पहले समझ लेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है. We should try to follow this. यहां पर this is the horizontal surface, rough horizontal surface. This is the loop which will be placed on the rough surface. इसका मास दिया गया है to be equal to small m. This is what is given. A radius is equal to r. Now, initially maybe it will slip. लेकिन slipping motion जब बंद हो जाएगा, when there is no slipping, it will mean what will happen? In that case, V of center of mass will be equal to r omega. और एक बात, initial omega, initial angular velocity उसका omega 0 है, मान लेते हैं, और जब उसका स्लिप होना बंद हो जाएगा, जब रोलिंग मोशन चालू हो जाएगा, हम मान लेते हैं उसके एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी है इक्वल टू ओमेगा. सो इनिशियल कितना है ओमेगा 0, बाद में कितना हो गया ओमेगा. velocity of the center of mass will be equal to r omega. यहां पर आप देखेंगे initial angular momentum is equal to final angular momentum.
स्टार्टिंग में ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, इट इज जस्ट रोटेटिंग, तो यहां पर आपका एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा 0. इट इज नॉट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ट्रांसलेशनल मोशन 0 है, छोड़ दीजिए उसको. यहां पर जब वो रोल करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन दोनों है. तो रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू m v इंटू ओमेगा. ये किसका है? सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी. दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू m when the loop starts rolling, then in that case the angular momentum of the center of mass will be equal to m v center of mass into the radius. और सिर्फ रोटेशनल मोशन अगर हमको काउंट करना है, it is equal to m r square into omega. This is what you get. तो मुझे यहां पर मिलेगा this is equal to m r ओमेगा इंटू r, और ये रहेगा m r स्क्वायर ओमेगा. सो दिस इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा प्लस m r स्क्वायर ओमेगा. सो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m r स्क्वायर ओमेगा, और यहां पर है m r स्क्वायर ओमेगा 0. सो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलता है? योर ओमेगा is equal to omega 0 by 2. पहले उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम कितना? तो सिर्फ रोटेशनल अपन ने काउंट किया, विच इज mr स्क्वायर ओमेगा. जब वो रोल करेगा तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा? m वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू r, एंड दिस इज इक्वल टू r ओमेगा. और बाकी के सब्स्टिट्यूशंस करने से अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 by 2. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. प्रॉब्लम नंबर 301 here. Circular platform is free to rotate in the horizontal plane about the horizontal axis, vertical axis passing through the center. A tortoise is sitting at the edge of the platform. The platform is given angular velocity omega. When the tortoise moves along the chord of the platform with a constant velocity, the angular velocity of the platform will vary with time as what? It is given to you. यह आपको निकालना है. उसका वेरिएशन किस प्रकार से रहेगा यह हमको समझना है. It is moving in this direction now. Now moment of inertia will be equal to OP square into mass into omega 0. Conservation of angular momentum के हिसाब से I'll put it like this. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. तो यहां पर आप देखेंगे पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m OP स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी. बाद में इट इज m x स्क्वायर इंटू ओमेगा. सो व्हाट विल हैपन टू दिस ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू OP स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. दिस इज r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. इसका मीनिंग क्या होता है कि ओमेगा is inversely proportional to x square. तो टॉर्टोइज जब इस डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, what will happen? The value of x goes on decreasing. Value of x goes on decreasing. So when it decreases, what will happen? Omega will go on increasing. Because of the inverse relation. तो जब ये इस डायरेक्शन में जाएंगे तो what will happen?
x की वैल्यू कम होते जा रही है, यहां पे मिनिमम हो जाएंगी, और ये डिक्रीज होने के कारण वी एक्सपेक्ट कि आपका ओमेगा बढ़ते जाएगा। यहां मिनिमम है, तो दिस विल बी ओमेगा विल बी मैक्सिमम। फिर बाद में फिर से जब वो Q से बाहर निकल के इधर की तरफ आएगा तो अगेन व्हाट विल हैपन, Q के बाहर निकल गया हो तो अगेन व्हाट विल हैपन, द डिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। सो इंक्रीज होने के कारण व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल, द एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो टॉर्टॉइस जैसा P से Q के तरफ आ रहा है, x इज डिक्रीजिंग सो ओमेगा इज इंक्रीजिंग। ये मिनिमम वैल्यू है, x के मिनिमम तो ओमेगा की मैक्सिमम। उसके बाद में जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो एंगुलर वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो ग्राफ जो हमको समझ में आता है, ग्राफ B इज वैलिड। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं भी डील कर लेता हूं। 302 नंबर यहां पर किस प्रकार से दिया देख लीजिए आप। A ceiling fan rotates about the axis some angular velocity. When the fan is switched off, angular velocity कितनी होगी, 1/4 in time t, and number of revolutions कितना किया, n. Now the number of revolutions made by the fan during the time interval between the switch off and the rest कितना रहेगा, ये पूछा गया है। तो यहां पर पहली बात तो आप समझ लेंगे कि अगर मैं ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो चली है इक्वल टू ओमेगा 0/4। और एक बात समझ लेंगे, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है 1 रेवोल्यूशन, तो थीटा का मतलब होगा हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, इट इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा अपॉन 2 पाई। रिपीट कर रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 2 पाई अगर होता है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए 1। थीटा अगर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई। इसका मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू n, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह में सब्स्टिट्यूट करेंगे ओमेगा 0/4 the whole square, and this is equal to omega 0 square minus 2 times alpha into, it is into what, 2 pi n। थीटा की जगह में हमने 2 pi n सब्स्टिट्यूट कर दिया है। So ultimately I had this to be equal to 2 pi n into 2 alpha is equal to, इसको इधर की तरफ लेके आ जाएंगे, ये 1/16 है, 1 minus 1/16 will be equal to 15/16 omega 0 square, and so we ultimately have 2 pi n is equal to 15/16, और ये रहेगा omega 0 square upon 2 alpha। ये बन गया मेरा the first equation। Again now, what is to be done? उसके रेवोल्यूशंस हो चले हैं जब उसके एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा/4, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n है, तो उसके बीच में हमने रिलेशन निकाला है। लेट अस से द टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट विल मेक इज इक्वल टू n डैश। इसका मतलब होता है कि फाइनल हो चुका है इक्वल टू 0। तो अगेन मैं इक्वेशन यूज करता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा थीटा, ये बन गया 0। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, एंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट इज मेकिंग इज, लेट अस से n डैश। पूरा रुकता है जब वो है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस उसके n डैश हो चले हैं, एंड सो वी हैव 2 पाई n डैश इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करेंगे, यहां का जो इक्वेशन है n और n डैश के बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। मैं रिलेशन को फिर से लिखता हूं, 2 पाई n is equal to 15/16 and this is omega 0 square upon 2 alpha।
तो मैं लिखूंगा 2 pi n is equal to 15/16 और omega 0 square upon 2 alpha that is equal to 2 pi n dash. So this will get cancelled और आपको मिलेगा n dash is equal to 16/15n. This is the answer. फर्क फिर से एक बार समझ लीजिए आप, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा 0/4, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने किए उसने n, जब एंगुलर वेलोसिटी पूरी 0 होती है तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना किया उसने n किया है. It is n dash and so the relation between them is equal to 16/15n. The difference is final velocity omega 0/4, this is equal to n, and final velocity is 0, number of revolutions it is making is equal to n dash. Well anyway, अब एक बात ध्यान में रखेंगे आप, इसमें मुझे जो लगते हैं डिफिकल्टीज मैंने सॉल्व कर लिया है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर लिया है. फिर भी अगर इसमें कुछ डिफिकल्टी, जितने भी आपने डिफिकल्टीज के नंबर्स मुझे दिए थे इन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसको मैंने सॉल्व कर लिया है. फिर भी अगर एक दो बच्चे अगर होंगे या कुछ एडिशनल डिफिकल्टीज निकलती है आप, तो डेफिनेटली उसको ग्रुप पे डाल दीजिए आप. आई सी व्हाट इज टू बी डन. प्रीवियस जो मैंने आंसर्स दिए हैं उसमें भी कुछ अगर प्रॉब्लम अगर लगता है तो इंडिविजुअली आप फोन करेंगे मुझे, मैं देखता हूं क्या करना है. लेकिन एडिशनल कोई डिफिकल्टीज अगर होंगी तो जस्ट पुट इट इन द ग्रुप. मैं नेक्स्ट चैप्टर जो डील करने वाला हूं इट इज ऑन ग्रेविटेशन. पहले मुझे थियोरेटिकल पार्ट डील करना पड़ेगा और वह उसी प्रकार से स्टार्ट करूंगा. आई टेक ऑल द ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल्स ऑफ 4 और मल्टीपल्स ऑफ 4 को कंप्लीट करने के बाद आपकी डिफिकल्टीज जो रहेंगी, जो मैंने आपके लिए दिया है वो डिफिकल्टीज आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. जो डिफिकल्टीज आते हैं अगेन उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है. ठीक है. सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा ग्रेविटेशन पे. आई विल स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल पार्ट. 2-3 दिन जाने दीजिए और 2-3 दिन के बाद इसकी भी डिफिकल्टीज में डील कर लूंगा, एक दो अगर बच्चे होंगे तो. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.